Hi guys, I hope you're doing well, and in this video we're going to be covering a very important topic, that is the law of diminishing returns, also known as the law of diminishing marginal returns. So guys, remember that the law of diminishing returns is a theory, or it's a concept or a phenomena that is always going to occur in the short run. Now we know what the short run is. The short run is a time period where at least one of the factors of production is fixed. That is, you always have one factor of production, at least one factor of production fixed, and normally our land and our capital is actually fixed in the short run. So the only way the businesses have to scale up their output, to increase their output, is they can only hire labor, right? Because they can't increase their land or their capital in the short run, since those are fixed factors. So the only option left is that I can only increase my output by hiring more variable factors, and the variable factor is labor, right? Now, what happens is that when the business starts hiring more variable factors on a fixed factor, initially your output, your total product or your output increases at a faster rate, and a certain point comes that your total product or your total output starts decreasing. Now that's the concept, guys, but I'm going to be explaining you this concept through an example. So now I want you guys to imagine that you have a, let's say, a farm, a small farm where you grow oranges, right? And let's say that in that farm has a small capacity, and you have a certain amount of oranges over there grown, and you aim to send some people and pick those oranges. So अब इसमें होता ये है कि for example, let's say that I am, first of all, I'm measuring labor here, that is the number of workers. The total product refers to the total output. The marginal product refers to the extra output produced by the extra workers, or extra output contributed to the production of total output. And your average product is just referring to the output per worker, that is total product divided by the quantity of the workers. Now like I said, imagine that you have an orange farm, right? अब होता ये है कि उसमें फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, अब आपको ऑरेंजेस पिक करना है, सही है, तो आप क्या करते हैं दैट आप मिस्टर ए को भेजते हैं वहाँ पे, सही है, एंड यू टेल मिस्टर ए टू पिक ऑरेंजेस फॉर यू इन लेट्स से 10 मिनट्स. आप उसको 10 मिनट्स का टाइम देते हैं और आप कहते हैं जाओ ऑरेंजेस तोड़ के लेकर आओ. वो जाता है, वो आपके फार्म में 10 मिनट लेता है और ऑरेंजेस ढूंढता है, दरख्त पे चढ़ता है और ऑरेंजेस तोड़ के ले आता है. और कितने ऑरेंजेस लेकर आता है? 5 ऑरेंजेस लेकर आता है. तो जाहिर सी बात है, अगर वो एक ही बंदा 5 ऑरेंजेस ला रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी 5 ही होगा, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट इज जस्ट दी एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस और कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एक्स्ट्रा वर्कर्स, राइट? ठीक है, आपके पास 5 ऑरेंजेस आ जाते हैं. अब आप सोचते हैं यार ये तो और भी ऑरेंजेस थे, 10 मिनट में तो और भी ऑरेंजेस आ सकते थे. तो फिर आपको जहन में एक आइडिया आता है, आप कहते हैं चलो यार इस दफ़ा ना 2 बंदों को भेजता हूँ मैं. तो अब आप मिस्टर बी को भी भेजते हैं. अब ए और बी साथ जाते हैं, यानी 2 लोग जा रहे हैं. अब वो 10 मिनट में जाते ऑरेंजेस जब लेकर आते हैं तो वो 15 ऑरेंजेस ले आते हैं. ठीक है, एक बंदा 5 ऑरेंजेस लेकर आ रहा था. अब जब दोनों एक साथ जाते हैं तो वो दोनों मिल के 15 ले आते हैं. आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये तो आइडिया वर्क कर गया. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के एक साथ जाने से जो एक्स्ट्रा आउटपुट मेरे पास आया वो कितना आया? 10 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस मेरे पास 10 मिनट के अंदर आ गए, जबकि पहला बंदा सिर्फ 10 मिनट में 5 ऑरेंजेस ला रहा था. लेकिन अब जब दोनों गए तो एक्स्ट्रा कितने ऑरेंजेस आ गए? एक्स्ट्रा 10 आ गए. अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा बिकॉज जब दोनों बंदे गए होंगे तो उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि यार, एक बंदे ने बोला होगा यार तुम ऑरेंजेस तोड़ोगे, मैं आपको डायरेक्शंस दूंगा, यार देखो वहाँ से वो अच्छा वाला है, उसको मे बी दरख्त पे चढ़ के तोड़ दो, व्हाटएवर, राइट? एक बंदा डायरेक्शंस दे रहा होगा, लेट्स से हाइपोथेटिकली, लेट्स अज्यूम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, और दूसरा बंदा ऑरेंजेस तोड़ रहा होगा, सही है. तो इन दोनों के दरमियान बेसिकली स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है. ऐसा नहीं हो रहा कि ए भी ऑरेंजेस तोड़ रहा है, बी भी ऑरेंजेस तोड़ रहा है. नहीं, ए डायरेक्शंस दे रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कहाँ ऑरेंजेस तोड़े जा सकते हैं, और बी तोड़ के लेकर आ रहा है, उसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है. तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूशन आई है वो बेसिकली 10 है. तो ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, विच इज़ बेसिकली द एक्स्ट्रा आउटपुट दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हायरिंग ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर. ठीक है. अब क्या होता है, अब आप सोचते हैं चलो यार और ऑरेंजेस मुझे लेकर आने, बिकॉज बिजनेसेस को तो ग्रो करना होता है ना, अपना आउटपुट स्केल अप करना होता है ताकि ज़्यादा आउटपुट सेल करें, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएं. तो अब आप सोचते हैं यार चलो एक तीसरा बंदा मिस्टर सी भी भेज देते हैं. तो अब आप तीनों बंदों को एक साथ भेजते हैं, यानी 3 बंदे जा रहे हैं ऑरेंजेस तोड़ने के लिए. अब जब वो 3 बंदे जाते हैं तो वो 10 मिनट में 35 ऑरेंजेस ले आते हैं. आप और खुश हो जाते हैं. अब क्या होता है, आप ये देखते हैं कि यार तीसरे बंदे की वजह से, यानी मिस्टर सी के जाने की वजह से, अब जो एक्स्ट्रा आउटपुट की कंट्रीब्यूशन हुई है वो 20 हुई है. आप देखते हैं यार ये तो मार्जिनल प्रोडक्ट और बढ़ गया. खाली जब ए और बी को भेजा था तो मिस्टर बी के एडिशन की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट 10 से बढ़ा था. अब मिस्टर सी के एडिशन की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 20 से बढ़ गया. तो मार्जिनल प्रोडक्ट 20 से बढ़ने का मतलब है कि अब जो टोटल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन मिस्टर सी के आने की वजह से जो आया है
वो 20 से आया है, ठीक है। तो 20 ऑरेंजेस मज़ीद अब आपके पास आ गए अगर मिस्टर सी को भी आप भेज देते हैं तो। अब क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, इसमें क्या हो रहा होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली इंक्रीज़ हो रही है, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर काम कर रहा है, ठीक है। आपके पास एक फिक्स्ड गार्डन है, ये आपका गार्डन है, ये फिक्स्ड है, इसकी एक लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। इसमें सर्टेन नंबर ऑफ बंदे अब भेज के आप ऑरेंजेस तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास एक फिक्स्ड फैक्टर है, दैट इज़ योर लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड गार्डन, एंड देन उसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं जिसमें ऑरेंजेस लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि यार मैं एक और बंदा भेजता हूँ। अब जब आप चौथा बंदा भेजते हैं, यानी मिस्टर डी को भेजते हैं, तो टोटल आउटपुट आपके पास आते हैं 50 ऑरेंजेस। यानी मिस्टर डी को भेजने की वजह से जो एक्स्ट्रा आउटपुट में कंट्रीब्यूशन आया वो सिर्फ 15 ऑरेंजेस का है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं यार जब मैंने 3 बंदे भेजे थे तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 20 था, तो जब मैंने 4 बंदे भेजे तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 20 से ज़्यादा होना चाहिए था, 22 होता, 25 होता, जो भी होता, बट यहाँ तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन गिर गया। इसका मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट मेरी गिर गई। हालांकि टोटल आउटपुट तो अभी भी इंक्रीज़ हुआ है, 35 से 50 हो गया है। लेकिन एक बंदा ये सोचता है ना, इकोनॉमिस्ट तो मार्जिनल को देखते हैं ना कि इज़ इट रियली वर्थ हायरिंग मिस्टर डी और नॉट, बिकॉज मिस्टर डी को हायर करा होगा जब मैंने, तो आई वुड हैव ऑब्वियसली बीइंग पेइंग हिम अ सर्टेन कॉस्ट, वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट होगी जो मैं इसको वेज दे रहा हूँ। तो मैं मार्जिनल कॉस्ट तो पूरी इनकर कर रहा हूँ, बट मिस्टर डी के जाने की वजह से जो एक्स्ट्रा आउटपुट में कंट्रीब्यूशन आया वो 15 आया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर सेट इन हो गया है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे ही मैंने चौथा बंदा हायर करके चौथे बंदे को गार्डन में भेजा कि अब ये 4 बंदे चले गए एक साथ, तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि मेरा छोटा सा गार्डन है, इसके अंदर पहली बात 4 बंदों की जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती 4 बंदे उसमें घुसा दिए हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ होगा? इससे ये हुआ होगा कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गई होगी। हो सकता है दोनों बंदे एक साथ मे बी लेट्स से दरख्त पे चढ़ गए हों और प्रॉपर्ली ऑरेंजेस नहीं तोड़ रहे हो सकता है मिस्टर ए, ये जो ए है, मिस्टर ए जो डायरेक्शन दे रहा था, ये डायरेक्शन दे रहा हो मिस्टर सी को, और मिस्टर डी कंफ्यूज होकर उस डायरेक्शन को पता नहीं उसने कुछ उल्टा समझ लिया हो। तो अब क्या हो रहा होगा? अज्यूम कर सकते हैं ना बहुत सारे सिनेरियोज, बिकॉज हमें प्रूफ तो करना है इस थ्योरी को, इस एग्जाम्पल के तहत। तो अब क्या हो रहा होगा? अब एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मच गई है, और जब ये 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, जब 10 मिनट बाद ये चारों बंदे लौटते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 50 ऑरेंजेस हाथ में होते हैं, और आप कहते हैं यार मैंने तो 4 बंदे भेजे थे लेकिन सिर्फ 15 ऑरेंजेस एक्स्ट्रा आए हैं, पहले 3 बंदे भेजे तो 20 ऑरेंजेस एक्स्ट्रा आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ चुका है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर आ चुका है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर आ चुका है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर आ चुका है, ठीक है। तो शुरू में जो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर काम कर रही थी, अब आपको पता है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर भी वर्क करेगी, बट फिक्स फैक्टर तब तक वर्क करेगी जब तक फिक्स फैक्टर आपके लिए कंस्ट्रेंट ना बन जाए। अब क्या हो रहा है? फिक्स फैक्टर आपके लिए कंस्ट्रेंट बन रहा है, जगह ही नहीं है उन 4 लोगों की, सही है। तो फिक्स फैक्टर कंस्ट्रेंट बन रहा है ना वेरिएबल फैक्टर्स के लिए। अब जब फिक्स फैक्टर कंस्ट्रेंट बन रहा है वेरिएबल फैक्टर के लिए, तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर भी अपने ऑप्टिमम लेवल पे वर्क नहीं कर रही, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर आप 5th बंदा भी भेजें, मिस्टर ई को भी भेज दें, और आप इन 5 को एक साथ भेजें, तो आप देखते हैं कि सिर्फ 58 ऑरेंजेस आ रहे हैं। यानी मिस्टर ई के एडिशन की वजह से तो और कम एक्स्ट्रा ऑरेंजेस आ रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट अब और तेज़ी से डिक्लाइन कर गया। यानी एक्स्ट्रा ऑरेंजेस की तादाद मिस्टर डी को हायर करने के बाद 15 आई थी, मिस्टर ई को हायर करने के बाद एक्स्ट्रा ऑरेंजेस की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 8 से इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हो रही है बट सिर्फ 8 से हो रही है। इसका मतलब कि टोटल प्रोडक्ट तो मेरा बढ़ रहा है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है। पहले 15 से इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि 20 से इंक्रीज़ हो रहा था ना पहले तो 3 बंदों पे, अब 15 से इंक्रीज़ हो रहा है, विच मीन्स और कम हो गया, फिर 8 से इंक्रीज़ और कम हो गया, तो यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट और गिर रहा है। फिर जब आप मिस्टर एफ को बेचते हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑरेंज नहीं आता, उतने ही ऑरेंजेस आते हैं जितने मिस्टर ई को भेजने के बाद आए थे। तो कोई मिस्टर एफ को फिर सैलरी देने का क्या फ़ायदा हुआ? बिकॉज इकोनॉमिस्ट ये सब चीज़ें इसलिए सोचते हैं, ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि डिसीजन मेकिंग में फर्म्स को हेल्प करता है। क्या हायर करना मिस्टर एफ को वर्थ इट था, नहीं था? वॉज इट वर्थ वाइल? Is the marginal cost greater than marginal benefit, or the marginal benefit is greater than marginal cost, right? Because remember we said that rational decision making is comparing your marginal benefit with your marginal cost, right? इसी तरीके से जब आप मिस्टर जी को भेजते हैं, 7th बंदे को भेजते हैं, तो इनफैक्ट ऑरेंजेस कम आते हैं। वो 10 मिनट के लिए जाते हैं ये 7 लोग, और ये 7 लोग कम ऑरेंजेस लेकर आते हैं। इसका मतलब मिस्टर जी को भेजने के बाद अब ऑरेंजेस इंक्रीज़ होने के बजाय, ज़्यादा आने के बजाय 3 ऑरेंजेस कम आ गए हैं। मिस्टर जी को भेजने के बाद 3 ऑरेंजेस कम आ गए, तो यहाँ तो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर गया है, क्योंकि तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में जा चुका है। मार्जिनल आउटपुट, एक्स्ट्रा आउटपुट
दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हायरिंग ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर. सही है ना. ये एक आपकी बेसिक एग्जांपल है. किसकी? ये आपकी एक बेसिक एग्जांपल है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की. मैं थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल के ऊपर भी आऊँगा, बट मैं आपको कहना, अच्छा इधर एक चीज़ आप ये समझ लें जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ दैट व्हेन वी सेंड मिस्टर ए, बी एंड सी इन द फील्ड एंड व्हेन वी हायर्ड मिस्टर सी, दैट इज़ द थर्ड वर्कर व्हेन वी हायर्ड, so that third worker basically contributed, that third worker, because of that third worker the extra contribution, because of that third worker the extra contribution to total output was 20, and hence 35 oranges were actually being picked up and then being bought. Now a lot of people think that ये जो 20 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस है ना, ये मिस्टर सी ने पिक किए होंगे, क्योंकि वो मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन को गलत समझते हैं. बच्चे ये इंटरप्रेट करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्स्ट्रा वर्कर. दिस इज रॉन्ग. मार्जिनल प्रोडक्ट इज नॉट द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्स्ट्रा वर्कर, राइट. मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एक्स्ट्रा आउटपुट contributed because of the third worker to the total product. I'm going to repeat, marginal product is the extra output contributed by the addition of the third worker to the total product. अब अगर 35 ऑरेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 ऑरेंजेस थर्ड पर्सन ने ही तोड़े होंगे. हो सकता है कि ये जो 35 ऑरेंजेस हैं इसमें से मे बी 8 ऑरेंजेस जो हैं वो ए ने तोड़े हों, बी ने 11, ठीक है, या सी ने 17, या हो सकता है 35 डिवाइड बाई 3 तीनों ने जो है वो मे बी, I don't know, whatever the answer is, 35 divided by 3 would be 11.67. तो हो सकता है तीनों ने 11.67 ऑरेंजेस तोड़े हों, कुछ भी हो सकता है, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि 20 ऑरेंजेस जो हैं वो थर्ड वर्कर ने पिक किए हैं, राइट. हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पिकिंग ऑफ ऑरेंजेस इज 20, यानी 20 ज़्यादा ऑरेंजेस अब प्रोड्यूस हुए हैं, यानी 20 ज़्यादा ऑरेंजेस तोड़ के लाए गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द थर्ड वर्कर. इसकी सिंपल वजह ये है कि देर इज़ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर टेकिंग प्लेस, राइट. एंड क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, यू हैव अ फिक्स वर्क स्पेस एंड देन योर फिक्स वर्क स्पेस इज़ अंडर यूटिलाइज्ड. यू हैव द कैपेसिटी फॉर 3 पीपल टू अकोमोडेट ऑप्टिमली. ऑप्टिमम 3 लोगों की जगह है, तो जाहिर सी बात है जब आप तीसरा बंदा भी भेजेंगे तो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करेगा, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ, अगर थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ आ जाएँ, इट सिंपली मीन्स that as businesses add more labor on fixed factors, ठीक है, labor is a variable factor, as businesses add more labor on fixed factors, they experience the law of diminishing returns, that is extra output contributed to the total output after employing an extra worker diminishes. तो extra output जो है वो after the contribution of an extra worker वो diminish होना शुरू हो जाता है as more variable factors are added to the fixed factor, ठीक है. We can also call that diminishing returns to labor, since the extra or the marginal output, marginal is the extra output contributed by hiring of each extra worker, begins to diminish as more labor is hired on fixed factors, more variable factors are hired on fixed factors. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिजनेसेस को अफेक्ट करता है. एक ऐसी लॉजिक है, ऐसा फिनोमिना है जो अफेक्ट करता है शॉर्ट रन के अंदर, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे फिक्स्ड होते हैं. सो एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, एक ऐसा पॉइंट आएगा बिजनेसेस को एक्सपीरियंस होगा एक ऐसा पॉइंट व्हेन ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल कंट्रीब्यूट लेस एडिशनल आउटपुट. ईच एक्स्ट्रा वर्कर will help in contributing less additional output in the total product, that is total output. That is extra marginal output contributed to the total product by each additional worker is going down as more labor is hired on a fixed factor. ये है diminishing marginal returns की लॉजिक. एंड नाउ अब हम ज़रा थोड़ी और टेक्निकल एग्जांपल पे आएंगे. अब अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करें मेरा एक पिज़्ज़ा मेकिंग का बिजनेस है और मेरे पास इस वक्त 3 ovens हैं जिसके अंदर मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ. मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसके अंदर लेट्स सपोज ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्कर्स एट मैक्स अकोमोडेट कर सकते हैं. तीसरा वर्कर अकोमोडेट करेंगे, थिंग्स वोंट गो वेल, ठीक है ना. तो अगर मेरे पास कोई भी वर्कर नहीं है, मेरा टोटल आउटपुट जो होगा, टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है. When I hire the first worker to make pizzas, he basically makes 5 pizzas, and hence the marginal product would be 5, and so would be the average product. Average product is simply total product divided by the quantity of the workers or the quantity of the labor. अब जब मैं 2 वर्कर्स हायर करता हूँ, यानी जब मैं सेकंड वर्कर भी हायर करता हूँ, तब टोटल मेरे पास 2 वर्कर्स हो गए, तो मैं देखता हूँ मेरा टोटल प्रोडक्शन पिज़्ज़ाज़ की 5 से 15 हो चुकी है. यानी सेकंड वर्कर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ 10. अब ना हो क्या रहा होगा, द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्कर दोनों स्पेशलाइज कर रहे होंगे और डिवीजन ऑफ लेबर वर्क कर रहा होगा. मे बी द फर्स्ट वर्कर इज जस्ट पुटिंग डो and just putting the vegetables and the chicken, and the second person is, you know, doing the topping and the baking of the actual pizzas, right?
तो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज दैट 2 वर्कर्स 2 ovens, तो फिक्स फैक्टर हमारे पास 2 ovens है, 2 कैपिटल है और उस पर 2 वर्कर्स लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है फिक्स फैक्टर का और वर्क स्पेस का, फिक्स कैपेसिटी का ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड वर्कर ने एक्स्ट्रा 10 पिज़्ज़ाज हेल्प किए कंट्रीब्यूशन में। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड वर्कर ने 10 पिज़्ज़ाज बैठ के बनाए होंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो 15 पिज़्ज़ाज हैं ये दोनों वर्कर्स ने मिलके बनाए होंगे। पहले एक वर्कर सिर्फ 5 पिज़्ज़ाज बना रहा था, अब दोनों मिलके 15 बना रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पिज़्ज़ाज कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द हायरिंग ऑफ द सेकंड वर्कर। दिस डज नॉट मीन कि सेकंड वर्कर बैठ के 10 पिज़्ज़ाज खाली वही बना रहा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 15 पिज़्ज़ाज जो मेरे पास इस वक्त बन रहे होंगे, हो सकता है 7.5 पिज़्ज़ाज एक बना रहा हो, 7.5 दूसरा बना रहा हो, या हो सकता है कि इसमें से 15 में से 8 पिज़्ज़ाज जो है वो एक बंदा बना रहा हो, मिस्टर ए बना रहा हो, 7 पिज़्ज़ाज जो हैं आउटपुट शेयर्ड हो इनके दरमियान। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये गलती मत करिएगा कि सेकंड वर्कर ही बैठ के 10 बना रहा होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये। अच्छा, अब नाउ इफ़ आई हायर द थर्ड वर्कर, सो मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन हो जाता है। सो नाउ इफ देयर आर 3 वर्कर्स इन द किचन एंड वी हैव 2 ovens, राइट। सो ऑब्वियसली एक अवन पे 2 लोग लगे हुए होंगे, राइट। तो अब क्या हो रहा है? अब प्रॉब्लम हो रही है, अब कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो गई है, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं करेगा। तो अब थर्ड वर्कर को हायर करने से मेरा टोटल प्रोडक्ट 20 तो हो जाता है, यानी ज़ाहिर जब मैं एक और वर्कर हायर करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है माई टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इट्स नॉट दैट माई टोटल प्रोडक्ट विल नॉट इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, बट इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, that is the rate diminishes from 10 to 5, right, which means that the marginal product actually goes down from 10 to 5. So third worker ka contribution, because of the hiring of the third worker, the extra contribution that happened in the total product was only 5 more pizzas, because 5 plus 15 is 20, right. If I hire the fourth worker, since diminishing return has already set in by the hiring of a third worker, if I hire the fourth worker, things will get even worse now. Maybe just end up start fighting with each other. They start getting in each other's way. There's a confusion in the kitchen. There's a total mess now. Too many workers spoil the broth, right? So if I hire the fourth worker, the extra pizzas that were made were only 2. And now the owner is confused. I mean, like, he's like, what the hell? There are 4 people working in the kitchen and the extra output is only 2. I mean, I'm confused now, right? Because चौथे बंदे को हायर करने के बाद सिर्फ पिज़्ज़ाज की प्रोडक्शन 20 से 22 पे गई है. Now that's very some. Obviously, मार्जिनल आउटपुट पहले 10 से 5 गया, यानी एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 5 हुआ व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन. अब डिमिनिशिंग रिटर्न के बाद अगर आप एक और वर्कर हायर करोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट और तेज़ी से नीचे जाएगा. अब तो 5 से इंक्रीज होने के बजाय सिर्फ 2 से इंक्रीज हुआ. फिर फिफ्थ वर्कर के बाद तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है, यानी और तेज़ी से डिमिनिश कर रहा है अब मार्जिनल प्रोडक्ट. एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर, ठीक है ना. एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एक्स्ट्रा वर्कर से बेहतर है आप बोले एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर तेज़ी से डिमिनिश कर रहा है बिकॉज ऑफ द हायरिंग ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कर. तो फिफ्थ की वजह से तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं आया पिज़्ज़ास के अंदर. इनफैक्ट 6 वर्कर को हायर किया तो पिज़्ज़ा प्रोडक्शन 22 से 18 हो गई और कम हो गई, मतलब बिल्कुल गिरी गई. इंक्रीज क्या नेगेटिव में चला गया, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर गया. मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में क्योंकि जा चुका था, यानी 4 कम पिज़्ज़ास बने हैं. अब आप देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी स्टीपली तेज़ी से फॉल कर रहा है, राइट. So this is the concept of diminishing returns and that is why this concept is very important. So for example, अगर मैं पिज़्ज़ाज एक्सपोर्ट कर रहा होता, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को पढूं, बिकॉज मैं अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएगा सो मेरा जो एक्स्ट्रा आउटपुट होगा पिज़्ज़ाज में वो कम हो रहा होगा. बिकॉज व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ लेस व्हाइल आई विल बी पेइंग द वर्कर्स, सो ऑब्वियसली द मार्जिनल कॉस्ट विल बी हायर. सो अगर बिजनेसेस की मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी और उसके अगेंस्ट मार्जिनल बेनिफिट कम होगा, तो ओवरऑल बिजनेसेस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऊपर जा रही होगी. अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रही होगी, मैं पिज़्ज़ाज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो बिजनेस है वो अनकम्पेरेटिव हो जाएगा. सो आई लूज आउट इन द मार्केट, राइट. मेरे एक्सपोर्ट्स अनकम्पेरेटिव हो जाएंगे. आई लूज आउट ऑन सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट रेवेन्यूज मे बी, लेट्स से. So this concept is very important for businesses, right? तो as A2 students जब आप इस concept को पढ़ रहे होंगे तो आपने इस concept को सिर्फ इस concept के तहत नहीं पढ़ना, उसकी application को भी समझना. It helps business owners make optimal use of resources, right? So as a business person, I should know कि यार after the hiring of the third worker, my diminishing returns would set in and it would keep going worse now, right? And if I were to calculate the average product, how will I do that? Average product is simply total product divided by output. So if I divide 5 by 5, if I divide 5 by 1,
the answer is 5. If I divide 15 by 2, the answer is 7.5. If I divide 20 by 3, the answer is 6.67. 22 by 4, the answer is 5.5, and so on and so forth. बट मुझे नज़र ये आ रहा है कि इनिशियली मेरा एवरेज प्रोडक्ट 5 से 7.5 हुआ है, यानी एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज़ हुआ है, फिर 7.5 से 7.5 के बाद वो गिर गया, यानी एवरेज प्रोडक्ट मेरा नीचे जा रहा है, फिर मेरा एवरेज प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, फिर मेरा एवरेज प्रोडक्ट नीचे जा रहा है और डिक्लाइन कर रहा है. सो मेरा एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है. सो एवरेज प्रोडक्ट की भी रिलेशनशिप हमें नज़र आ रही है कि एवरेज प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद मेरा एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर रहा है. इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज़ नहीं करता रहेगा, बल्कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गई है, उसके बाद फिर मेरा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन भी कर रहा है. यानी एवरेज प्रोडक्ट का भी हमें रिलेशनशिप नज़र आ रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ही नहीं है, बल्कि वो डिक्लाइन भी कर जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. सही है. सो एवरेज प्रोडक्ट सिंपली मुझे क्या बता रहा है? एवरेज प्रोडक्ट मुझे बता रहा है आउटपुट, यानी टोटल प्रोडक्ट जो मेरा है, अगर उसको डिवाइड कर दूँ बाय द क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स, इट्स सिंपली टेलिंग मी द आउटपुट पर वर्कर. It's simply telling me the number of pizzas produced. So let's suppose if I have 3 workers in the kitchen, if I have 3 workers in the kitchen and on a total 20 pizzas are made, so on an average, one worker is making 6.7 pizzas. So if I have 5 workers in the kitchen producing 22 pizzas, so on an average 4.4 pizzas are made. So average product is basically output per worker, right? You could say it's, so again, now if I want to so first of all, remember that in the exam, it's very important for you to know this, that if the marginal product, we know that marginal product rises initially हमारा marginal product rise हो रहा था स्ट्रॉबेरीज की एग्जांपल में भी और पिज़्ज़ाज की एग्जांपल में भी 5 से कितना हो गया था, 5 से हमारा marginal product 5 से 10 हो गया था. अब क्यों इंक्रीज़ हुआ था marginal product? Why was it rising? Because firms are experiencing increasing returns to labor, because labor productivity was rising. Why were firms experiencing increasing returns to labor? Because labor productivity was rising. And now why was labor productivity rising? It was rising because of specialization and division of labor taking place. Also remember that if I had only one worker initially, and which means that I had the capacity to hire more workers, just like I had the capacity to send more people in my garden for oranges, right? So initially my fixed factors were underutilized. My land and capital was underutilized. I had one extra oven that was not being utilized. So obviously if I will hire one more labor and ask him to use that oven, obviously the total output would increase at an increasing rate. That is, marginal product would go up. Because now my fixed factors are now being optimally utilized, right? So initially there was underutilization of fixed factors, which is, so as more variable factors are hired, your fixed factors are they start becoming optimally utilized up to a certain point where diminishing return sets in. And once diminishing return sets in and you keep on hiring more and more variable factors on it, so diminishing returns would set in, which would mean that when we employ our third worker for the pizza, labor productivity goes down. Because now the fixed factor becomes a constraint, or it becomes a constraint for the variable factors, right? It becomes a constraint for the variable factors. Because there are enough fixed factors, there are only 2 ovens. So if you hire the third person, he has to share an oven, right? So there are enough fixed factors to take on more variable factors. That's what you will write in the exam. So workers start to get in each other's way, affecting each other's output. This is the main line which the examiner will be looking for. Workers start to get in each other's way, affecting each other's output. So yeah, guys, this is basically the concept of diminishing returns. Now, what are the conclusions from this video? First of all, remember that total product would be maximum when marginal product is 0. That is, when the marginal product is 0, the total product is at its maximum, right? So the maximum output that this business makes is, when you have 5 people on board. Although if you have 4 people on board, still is the same number. But then again, still you have actually hired one more person, that is the 5th worker. So you will be considering the situation when you have hired the next worker. So you will look at a situation when the marginal product is 0. So that's the point where your total product is actually the maximum. The total product is maximum and marginal product is 0. Also, as long as marginal product is positive, total product will be increasing. Now, when you say that marginal product is positive, that is, marginal product is actually, positive, your total product will be increasing. And when total product will fall when marginal product becomes negative. You can see that your total product declines from 22 to 18 only when your marginal product is negative, that is -4. But up till the point where marginal product is, let's say, 0, your total product is actually increasing. Although it is increasing at a decreasing rate, but then again it is still increasing. And when marginal product becomes negative, your total product actually goes down. So total product will fall when marginal product becomes negative. Now,
initially what happens is that before marginal returns, DMR, before diminishing marginal returns, but don't write DMR in the exam. I just don't want to write the full form. Before diminishing marginal return sets in, your total product is rising at an increasing rate. Now, which means that your marginal product is actually increasing. After diminishing return sets in, your total product is rising. It is still rising, remember, but at a decreasing rate, right? Which means that your marginal product is actually going down. Because when you hired the third worker to make the third pizza, your marginal product declined from 10 to 5. So although your total product went up from 15 to 20, but then it only went up by 5. And then when you hired the fourth worker, your total product went up by only 2. Although it still increased from 20 to 22, but it only went up by 2. So again, it is increasing at a decreasing rate, right? So yeah, guys, that's about it. I think I've pretty much covered what diminishing marginal returns theory is. I hope you guys enjoyed this video. I'll see you all around in the next video. And in the next video, we are going to be covering the graphs of total product, marginal and average product. Super excited to make that video. I'll see you all around in that video. Until then, take care.